Okay, good morning, students. Today, third video, part 3, chapter 14, class 10 physics. The nuclear energy. The energy produced due to nucleus of an atom is known as nuclear energy. Nuclear energies are two types: nuclear fission energy and nuclear fusion energy. Nuclear fission energy means when heavier atoms splits into two atoms, it releases a lot of energy. For example, radioactive elements like uranium, thorium, radium. For the nuclear energy, uranium 92-235. Atomic number 92-235 is taken, and when 0n1 slow velocity of neutron, that is the 0n1, is bombarded to the uranium 92-235, then it splits into two parts, that is barium and krypton. Barium and krypton, smaller atoms, and three new neutrons are released. Among these three, two atoms splits two further uranium atoms, and one neutron is neutralized. See here, when 0n1 is bombarded at uranium, it is split into two smaller atoms, that is the barium and krypton, and it releases three 0n1. 0n1 means neutron. Three new neutrons produced. These three new neutrons split two more uranium atoms, and after each splitting, one neutron is neutralized, and two neutrons is active, and they split further two atoms, and these two splits splits two further uranium. Likewise, after splitting one time, it gives a lot of heat energy, as well as radioactive rays also, alpha, beta, gamma. These rays are very harmful. In nuclear reactor, it is arranged to hide to arrange these rays alpha, beta, gamma such that they are deep into earth side, inside of the earth. Okay, and one splits two atoms, two splits four atoms, four splits eight atoms. I mean, the chain reaction is started, and energy double than before is released until all uranium atoms are splitted, and a lot of uncontrolled energy is produced. But in atom bomb, this occurs freely. They are free to split. But in nuclear reactor, moderators are there. The newborn atoms, which produce after the splitting, is absorbed by the cadmium or boron rods. You can see this in nuclear reactor. It is cuboidal concrete chamber. Inside concrete chamber, there is uranium rod, then after cadmium, uranium, cadmium, many rods may be at the capacity of the reactor. And the cadmium rod is absorber of the newborn neutrons, which continue the nuclear fission. When they absorb the neutrons, the fission, chain reaction stops, and the heat release is used to hot the sodium atom, which produces sodium vapor, and in this chamber, this sodium vapor is given heat to water, and this water is further moves water steam and rotates the turbine. Not only a single turbine. Here is shown only one turbine,
but more than one turbines may be as the capacity of the reactor. You can see that in this cooling chamber, the water is enclosed. When sodium vapor is cooled by the water, this water is too much hot, so it vaporizes the water, and water vapor goes through this turbine, many turbines maybe, and rotates the generators. Afterwards, when this steam is cooled, it fall down and again recycle in this chamber, so that the heat is not wasted. Okay, students, I want to explain it in Hindi also, because students are some students are telling that it should be explained in Hindi. Okay, सुनिए ध्यान से। ये मॉडर्न एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। शुरू में इस स्रोत का उपयोग एटम बम के रूप में किया गया। ये यूरेनियम का एटम बम के रूप में जो इस्तेमाल किया गया, अमेरिका ने इसका किया था एटम बम, और नागासाकी, हिरोशिमा, जो जापान के दो मशहूर सिटीज हैं, बड़े सिटीज हैं, उनको नष्ट कर दिया। और ये इसका पहला मानव पर परीक्षण हुआ, जो बहुत ही विनाशकारी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ऐसा किया था, और उसके विनाश लीला को देख करके पूरी दुनिया डर गई। इवन अमेरिका भी डर गया कि यदि ऐसा होता है तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो जो पहले संगठन बनता था वर्ल्ड लेवल का, जैसे मुस्लिम लीग, लीग ऑफ नेशंस, ये सब 2 साल, 4 साल, 10 साल में ये संगठन टूट जाता था। यानी विश्व का जो वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन था वो सशक्त नहीं हो पाया। लेकिन इस विनाश को जब देखा दुनिया ने, तो सबको डर हुआ। तो डर से आदमी सही रास्ते पे आ जाता है। जब डर हुआ तो हुआ कि यदि ऐसा कंट्रोल नहीं हुआ तो दुनिया ही नहीं रहेगी, तो फिर इस विकास का क्या मतलब है। तब यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना। ये 1945 जब में ही ये बम ब्लास्ट हुआ था, और उसी समय अक्टूबर में बन गया। और वो ये यूएनओ का बनने के बाद ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर यह सहमति बनी कि एटम बम कोई छोड़ नहीं सकता, ये प्रतिबंधित है। तो तब से आज तक, ये 1945 से अब तक 2021 चल रहा है, अब तक ये कोई वर्ल्ड वार का मतलब ये फोर्सली पॉसिबिलिटी नहीं है। संभावनाएं थोड़ा बहुत बनती हैं, लेकिन ये कंट्रोल हो जाती हैं। ये दुनिया इस वर्ल्ड वार की तरफ जाना नहीं चाहती है, उस विनाश की तरफ। ठीक है, आप देखिए कैसे यूरेनियम में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जब ये हैवियर एटम जो 92 एटॉमिक नंबर और 235 एटॉमिक मास है, जब इस पर जीरो यानी स्लो वेलोसिटी न्यूट्रॉन, 0n1 मीन स्लो वेलोसिटी न्यूट्रॉन का बम्बार्ड किया जाता है, तो ये 2 भाग में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, और 3 अलग से नया न्यूट्रॉन पैदा कर देता है। ये 3 नए न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, आगे नहीं तोड़ता है यूरेनियम को, लेकिन 2 न्यूट्रॉन क्या करता है कि 2 और यूरेनियम को तोड़ देता है, और 2 वाले फिर 4 को तोड़ देते हैं, 4 वाले 8 को तोड़ते हैं। और ये इस तरह से एक बार टूटने से जो एनर्जी निकलती है, दूसरे बार में उसके डबल, माने 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 10 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, इस तरह उसका डबल देन बिफोर होता जाता है। और एनर्जी की विशाल जो भंडार है, इतना कम समय में पैदा हो जाता है कि पूरा ऑक्सीजन को ही सोख लेता है, और जीव जंतु, पशु पक्षी सब ऑक्सीजन के बिना तड़फड़ा कर मर जाते हैं। और उसके बाद इसका जो लॉन्ग टाइम जो इफेक्ट होता है, लॉन्ग टाइम डिफेक्ट ये है कि इसमें से अल्फा, बीटा और गामा जो रेडियो एक्टिव हार्मफुल रेज हैं, वो एक बहुत अधिक मात्रा में निकलती हैं, और वर्षों तक उसके नियर बाई एरिया में फैल जाती हैं, और बच्चे विकलांग पैदा होते रहते हैं। ये नागासाकी, हिरोशिमा के बच्चे वर्षों तक विकलांग पैदा होते रहे, और तब धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हुआ और अब सामान्य हो पाया है। ओके, आप देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाया गया, इस विनाशकारी जो एनर्जी है, जो हीट है, उसको कंस्ट्रक्टिव एनर्जी का रूप दिया इसने। यानी उस जो अनकंट्रोल हीट एनर्जी था उसको कंट्रोल किया, और जो हार्मफुल रेज थी
उसको भी एक साइड से जमीन के अंदर दबाने का काम किया गया, यानी वो रेज भी ना बाहर निकले और हीट भी हमें मिल जाए। क्योंकि यूरेनियम जो फ्यूल रॉड है वो बहुत अधिक एनर्जी देता है। ये एक बार डाल देने पर महीनों तक ये रिएक्टर हीट देता रहता है, यानी बहुत सस्ती बिजली है, ये बहुत सस्ती है और छोटे से जगह में बहुत अधिक इसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन इसका जो रेडियो एक्टिव रेज का प्रॉपर डिस्पोजल न होने के कारण इसका व्यापक यूज वर्ल्ड लेवल पर नहीं हो पाता है। इंडिया ने इसके लिए भारत में बहुत सारे रिएक्टर्स हैं, लेकिन भारत गवर्नमेंट को अभी अलाउ ही नहीं हुआ है कि कमर्शियल यूज के लिए इसका उपयोग करें। ये रिसर्च के लिए केवल हमारे यहाँ यूज होता है। और ये उत्तर प्रदेश में भी ननौरा में हो गया है और तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहले भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर बना। उसके बाद ये कलपक्कम मद्रास और राणा प्रताप सागर। तो इस तरह का जो रिएक्टर्स हैं हमारे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन ओनली फॉर रिसर्च, नॉट फॉर कमर्शियल यूज। देखिए ध्यान से ये कैसे काम करता है। ये कीवार्डल चेम्बर है जो कंक्रीट की मोटी दीवार से बनी हुई है। उसके अंदर में ये ग्रेफाइट कोर मॉडरेटर है और तब ये पहले यूरेनियम रॉड, फिर कैडमियम, यूरेनियम, कैडमियम, इसमें तो 2 पेयर दिखाया गया है, लेकिन ये बड़ा हो सकता है, कई पेयर में होते हैं। जैसा उस रिएक्टर की कैपेसिटी होती है उसके अनुसार ये होता है। अब ये यहाँ इसके बाद देखिए जो हीट प्रोड्यूस हुआ, यदि इसको नॉर्मली छोड़ दिया जाए, नेचुरली हीट प्रोड्यूस करने के लिए मॉडरेटर न लगाया जाए, तो ये चैम्बर को तोड़ देगा और इतना विशाल ऊर्जा निकलेगा कि वो विनाश कर देगा। तो इसको लिए ये जो मॉडरेटर लगाए गए हैं, कैडमियम या बोरान की रॉड्स लगाई जाती हैं मॉडरेटर के रूप में। एक ग्रेफाइट भी होता है। तो ये जो ही इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको ऑब्जर्व करता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ना, जो आगे चेन रिएक्शन को बढ़ाते हैं, उनको ही ऑब्जर्व कर लेता है। एक फिक्स टेम्परेचर से अधिक नहीं होने देता, ऑटोमेटिक ये अप डाउन हो जाता है, जिससे कि मॉडरेटर न्यूट्रॉनों को सोख लेता है और चेन रिएक्शन रुक जाती है। और जितना हीट निकला उस हीट से ये सोडियम वेपराइज होता है और वेपराइज होकर के इसमें ये रन करने लगता है, वेपर इसमें आता है और ये वेपर इसमें वाटर चैम्बर से जुड़ा हुआ है और इस वाटर को हीट करता है। वाटर वेपर निकालता है बहुत तेजी से और ये वेपर यहाँ से ये थर्मल एनर्जी जो एनटीपीसी होता है, नेशनल थर्मल, उसकी तरह से जो ये स्टीम टरबाइन होते हैं, ये स्टीम टरबाइन एक मैंने दिखाया आपको। इस लाइन में बहुत सारे, एक ही लाइन में 2, 4, 6, 10 टरबाइंस उसकी कैपेसिटी के अनुसार लगे रहते हैं एक ही हाइट पे। और उसमें से जो भी फिर वो ये वाटर पेपर जब कूल होता है, चलता है, तो नीचे आता रहता है और वो उस टाइम हीटेड जो वाटर है वो फिर से रिसाइकल होकर इसमें आता है। इस तरह से एनर्जी जो उसके अंदर है, हीट, वो वेस्ट भी नहीं होती है और वो रिसाइकल होती है। थोड़ी सी टेम्परेचर पे वेपराइज होकर के ये हीट एनर्जी पैदा होता रहता है और ये बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जिसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे वाला इसको बताऊंगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आपको। थैंक यू।